میرا پہلا سوال ہے کہ سب سے بڑا چور کون؟ دوسرا سوال ہے سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ اللہ نے ہم سب کے رگوں کے اندر، اس دماغ کے اندر کل کتنے سوراخ کو پیدا کر دیا؟ آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ ہم، تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. کہ ماں کے ممتا کا قرضہ نہ ہوگا ادا، ماں کے ممتا کا قرضہ نہ ہوگا ادا، ماں کو راضی کرو خوش رہے گا خدا، کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، چہرہ دیکھو تو حج کی شہادت، ماں اگر نیند میں ہو، ماں اگر سو رہی ہو تو جا کے طلبہ دبا دو، ماں اگر سو رہی ہو تو جا کے طلبہ دبا دو، بولو امی میری زندہ باد، زندہ باد بولو امی میری زندہ باد۔ صدر محترم معزز سامعین کرام، اسٹیج پر علماء کرام اور عزیز طالب علموں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ میں دو چار پیغام دینے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میرا پہلا پیغام ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو کب یاد کرتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور میرا دوسرا پیغام ہوگا عورتوں کے حوالے سے، عورت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور سب سے زیادہ قیامت جہنم کے اندر جو اکثر زیادہ تر عورتیں جہنم میں جائے گی، وہ کیوں جائے گی، کس بنا پر جائے گی، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا۔ میں پیغام شروع کرنے سے پہلے میں سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا، میرا پہلا سوال ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ دوسرا سوال کہ سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ اللہ نے ہم سب کے رگوں کے اندر، اس دماغ کے اندر کل کتنے سوراخ کو پیدا کر دیا ہے؟ یہ میں آپ لوگوں کو یہ سوال کا جواب مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پیغام شروع کروں گا۔ میرا پہلا سوال تھا کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لیتا ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ نماز میں سے چوری کیسے کرتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، رکوع کیا تو صحیح سے سجدہ نہیں کیا، سجدہ صحیح سے کیا تو صحیح سے رکوع نہیں کیا، یہ نماز کا چوری ہوا، یہ پڑھنا نہیں ہوا، چوری ہوا، تو سب سے بڑا چور وہ ہے۔ میرا دوسرا سوال تھا کہ سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جو نبی کا نام آئے اور نبی پر درود نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا بخیل آدمی ہے۔ میرا تیسرا سوال تھا کہ انسان کے بدن کے اندر، دماغ کے اندر کل کتنے سوراخ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کتاب کا نمبر ملفوظات کتاب کا نام ہے، اس میں پڑھیے گا تو انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ سوراخ کو پیدا کر دیا ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں، موبائل ہے، یہ میرے پاس موبائل ہے، اس میں میموری کارڈ 32 GB 4 GB ہوتا ہے یا 8 GB ہوتا ہے، اس کے اندر ہم گانا کو لوڈ کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں اس چیز کے بارے میں
लोड करते हैं या फिल्म लोड करते हैं तो मिसाल के तौर पर 32 या 40 45 ऐसे ही फिल्म आता होगा तो हम दिमाग लगा लेते हैं यार इतनी छोटी सी चीज है इसके अंदर इतनी सारी चीज आ जाता है मगर हम इस चीज पर अल्लाह की बनाई हुई चीज पर हम दिमाग नहीं लगाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिमाग के अंदर जो 10 लाख स्वाद को पैदा किया है अगर इसकी वीडियो अगर बनाना हम चाहे और वीडियो बना करके अगर इसको हम देखना चाहे तो 300 साल तक इसकी वीडियो को हम देखते रह सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी स्वाद इस दिमाग के अंदर पैदा किया है पूरे बॉडी के अंदर इंसान के अंदर 500 रगे को अल्लाह ताला ने उतार दिया है एक आंख के अंदर अल्लाह ताला ने 13 करोड़ बल्ब को पैदा कर दिया है पूरे बॉडी के अंदर इंसान के बदन के अंदर 42 लीटर पानी को रख दिया है 5 लीटर खून रख दिया है ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान और करम है। मैं सवाल के जवाब मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह मैं पैगाम की तरफ ले चलता हूँ। मैंने कुरान करीम की तिलावत की इहदीना सिरातल मुस्तकीम। हम लोगों को चाहिए कि उस अल्लाह से जिस अल्लाह ने हम सबों को बनाया उनसे दुआ मांगे कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दे। इस कुरान का तर्जुमा यही हुआ इहदीना सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अब ये दोस्तों बुजुर्गों मैंने कहा था कि आप अपने नबी के सुन्नत को कब जिंदा करते हैं मैं इस टॉपिक पर आता हूँ। हम अपने नबी के सुन्नत को 3 वक्त में जिंदा करते हैं बाकी टाइम में भुला देते हैं। आप कहिएगा कैसे कैसे एक जब बच्चा पैदा होता है तो खतना करने के लिए हम सुन्नत ही करते हैं कि भाई नबी का सुन्नत है ये खतना कर दो उस वक्त याद आता है हमको ये नबी का सुन्नत उस वक्त हम जिंदा करते हैं। दूसरा कब जिंदा करते हैं जब शादी होता है निकाह पढ़ाते हैं तो निकाह करना सुन्नत है तब हमको याद आता है कि नबी का सुन्नत है इसको जिंदा करें। तीसरा हम कब सुन्नत जिंदा करते हैं जब मैयत तैयार हो जनाजा उठ गया हो जनाजे की नमाज में चले ये जनाजा की नमाज पढ़ ले ये सुन्नत है। बस 3 वक्त में हम अपने नबी के सुन्नत को जिंदा करते हैं बाकी टाइम में अपने नबी की सुन्नत को छोड़ देते हैं। इस वजह से आज हम लोगों के ऊपर ये जो अल्लाह ताला हम लोग कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत तो ऐसे करेगी कैसे आएगी हुकूमत नमाजें छोड़ करके सोते रहिए हुकूमत आ जाएगी नबी के सुन्नत को छोड़ करके जिंदगी गुजारिए हुकूमत आ जाएगी अल्लाह के रस्सी को छोड़ दीजिए तो हुकूमत दे देगा अल्लाह नहीं हरगिज़ नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब ये मैं औरतों के ऊपर ले चलता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों मेरी पर्दा में रहने वाली मेरी माँ और बहनों बस मुख्तसर सा वक्त लूंगा 10 मिनट में आप लोगों को बता दूं अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों का जो मकाम रखा है हदीस का मफहूम है आप तिरमिज़ी शरीफ भी उठा करके देख सकते हैं यहाँ मुफ्ती अहमदी भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने औरतों के पर्दे के मकाम को काबे से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है काबा से भी ज्यादा बुलंद अल्लाह ताला ने औरतों के पर्दे के बारे में कहा मकाम को ऊंचा किया वो क्यों आपको पता है नहीं है पता मेरे दोस्तों बुजुर्गों मैं बताता हूँ मुख्तसर सा वक्त में जब वक्त भी ज्यादा हो चुका है। सबसे ज्यादा औरत जहन्नम में क्यों जाएगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे ज्यादा औरत वो जहन्नम में जाएगी जो अपने शोहर से बदकलामी जो अपने शोहर से बदकलामी करता हो बदमिजाजी बातें करता हो मुंह पर टकरा दे देता हर बात पर लड़ाई झगड़ने के लिए उतर जाए वो सबसे पहले जहन्नम में जाएगी। सबसे ज्यादा जाएगी वही औरत। एक औरत 4 आदमी को जहन्नम में ले जा सकती है। आप कहिएगा कौन कौन तो सबसे पहले अपने बाप को ले जा सकती है जहन्नम में। दूसरा नंबर अपने भाई को ले जाएगी। तीसरा नंबर में अपने शोहर को ले जाएगी। चौथा नंबर में अपने बेटे को ले जाएगी जहन्नम में। अब वो क्यों ले जाएगी कैसे ले जाएगी ये भी मैं आप लोगों को तफसील से बता दूंगा वक्त के तकाजे के मद्देनजर रखते हुए। अल्लाह ताला ने जो औरत मैं बताता हूँ जो औरत अपने घर से बगैर दुपट्टा के निकलती है तो मरने के बाद वो तो कब्र के अंदर तो 99 अज़्दे मुसल्लत होवे करेंगे मगर जहन्नम के अंदर जो अजाब होंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। जो औरत अपने घर से बगैर सर पर दुपट्टा रखे हुए निकलती है तो कल क़यामत के दिन मरने के बाद जहन्नम के अंदर उसके बालों को पकड़ करके फरिश्तों को हुक्म देगा अल्लाह ताला कि इसके बाल के बल लटका दो। उसको बाल के बल लटका दिया जाएगा और उस औरत की दिमाग हांडिया की तरफ खोलेगी। आप कहिएगा हांडिया क्या है जिस तरीके से हम चावल बनाने के लिए अधन खोलता है ना उसी तरीके से उस औरत की दिमाग खोलेगी। दूसरा वो औरत जो औरत अपने सीने पर दुपट्टा नहीं रखती है तो वो मरने के बाद जहन्नम के अंदर उसके सीने के बल लटका दिया जाएगा। तीसरा वो औरत जो लिपस्टिक लगाती है
लिपस्टिक लगाती है और घूमती है बाजारों में, महल्लों में, गलियों में, तो उस औरत को जहन्नम के अंदर नीचे के होंठ को खींच करके कान तक ले आएंगे और ऊपर के होंठ को खींच करके पीछे तक दे देंगे। ये औरत का अज़ाब। चौथी वो औरत जो औरत नाखून पालिश लगाती है, तब कयामत के दिन जहन्नम के अंदर वो औरत के अंदर से नाखून को भी खींच लेंगे अल्लाह ताला। ये औरतों के इस तरीके से अज़ाब होंगे। फिर उसके बाद अब जो 4 आदमी को औरत जन्नत भी है तो जहन्नम भी है, औरत घर की जन्नत भी है तो जहन्नम भी है। अब जहन्नम कैसी है, जन्नत कैसी है? अगर वही औरत अपने शोहर की फर्माबरदार है, अपने सास ससुर की फर्माबरदार है, खिदमतें करती है और अल्लाह और उसके रसूल यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करती है, तो वो औरत के लिए जन्नत है। और जो औरत शोहर से बदकलामी करती है, शोहर से बदकलामी करती है, ये नहीं कहिएगा जब हम घर से निकलने लगे तो अपने घर में भी है हुक्म है औरत को कि अपने बेटे से भी पर्दा करे। यहाँ तक क्या हुक्म है कि अपने बेटा से भी पर्दा करे। शोहर के तो दूर की बात है, सास ससुर के तो दूर की बात, अपना बेटा से भी पर्दा करना चाहिए औरतों को। औरत के मकाम को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा किया है। औरत वही औरत बेटी होती है, पैदा होती है, बेटी रहती है। वही औरत आगे मरहला में जाकर के शादीशुदा होती है, वही औरत माँ बन जाती है। अल्लाह ताला उसके नीचे, उसके कदमों के नीचे जन्नत रख देती है। पहले रहमत होती है, फिर उसके बाद बरकत होती है, फिर उसके पैर कदमों के नीचे जन्नत खिला देती है अल्लाह ताला। तो वो औरत सबसे पहले कयामत के दिन उस औरत को लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि बताओ, ये जो तुम्हारा बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरा शोहर है, ये तेरा बेटा है, तूने क्या करके आया? मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आई कि नहीं आई? वो सारे के सारे अल्लाह को मालूम ही है हर चीज, मगर फिर भी पूछेंगे। तो उस औरत कहेगी कि ए अल्लाह, ये मेरा शोहर है, ये तो खुद नमाज पढ़ता था मगर मुझे कभी नमाज के लिए हुक्म नहीं करता था। अल्लाह ताला कहेंगे कि शोहर के साथ समेत इसको भी जहन्नम में फेंक दो। दूसरा कहेगा, वो औरत कहेगी कि अल्लाह, ये मेरे बेटा है, इसको मैंने मदारिस में पढ़ाया, इसका दीन का तालीम दिया, इसको ये खुद जानता था, मुझे कभी नहीं पता था। इस वजह से कहेंगे अल्लाह ताला जी इसे भी जहन्नम में फेंको। फिर उसके बाद कहेंगे कि ये मेरा बाप है, ये बाप ने मुझे पैदा किया, मुझे अच्छी तालीम भी नहीं दी और मुझे अच्छी तालीम नहीं दिया, मुझे आपके बारे में और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताया। इस वजह से अल्लाह ताला कहेंगे कि इसे भी जहन्नम में फेंक दो, यानी चारों समेत जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, औरत के मकाम को अल्लाह ताला ने काबे से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। पहले के जमाने की औरतें वो थी जो अपने ससुर के सामने, आज अपने ससुर के सामने ये घूमता जो होती थी वो दिखाई भी नहीं देती थी। आज की औरतें ऐसी हो गई है कि भाई ससुर सामने बैठा है, आगे खूब बातें चीतें कर रहे हैं, ऐसा मकाम नहीं। मेरे दोस्तों